السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راز آن لائن اکیڈمی میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال ہے۔ آج ہماری یہ ویڈیو جی کے جنرل نالج کے اوپر ہوگی۔ انشاءاللہ ہر دن آنے والے دنوں میں جی کے اور کرنٹ افیئرس کے اوپر ایک ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چینل میں اس سے پہلے سائیکالوجی کے 3-4 ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے تھے۔ بعد میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر پائے، تو انشاءاللہ آج سے ہماری کوشش رہے گی کہ جی کے اور کرنٹ افیئرس کے اوپر انشاءاللہ روزانہ ایک ویڈیو لانے کی کوشش کریں گے، اور جو سائیکالوجی کے باقی ٹاپکس ہیں اس کو بھی کور کریں گے۔ تو دیکھو، ابھی تک جو لوگ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو ہمارے چینل راز آن لائن اکیڈمی کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیجئے۔ راز آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام مسابقتی امتحانات میں مدد ملے۔ تو دیکھو، جی کے جو جنرل نالج ہے وہ ہر ایک کمپٹیٹیو ایگزام جیسے پولیس ہو، گروپس ہو، اسی طرح سے یو پی ایس سی ہو، جتنی بھی گورنمنٹ کے لحاظ سے اسٹیٹ ہو یا سینٹرل ہو جس میں جنرل نالج کے سوالات ٹاپک کیا جاتا، اس میں ہر طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اے پی اسٹیٹ کے اعتبار سے لیے گئے تو ٹی ایس سی ہو یا پھر اسی طرح سے پولیس ڈپارٹمنٹ ایس آئی ہو، اس میں ہر ایک اس میں بھی جنرل نالج عام رہتا۔ تو جنرل نالج میں اکثر کہاں سے سوالات پوچھا جاتا، کس طرح کے سوالات پوچھا جاتا، تو اس کو ہمیں ایک بار جانیں گے۔ تو اس کے ٹاپک کی ایک بار ہمیں جانکاری حاصل کر لینا، تاکہ ہمیں ایگزام میں کہاں کہاں سے پڑھنا بول کر ایک معلومات حاصل ہو جاتی۔ تو سب سے پہلے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری ٹاپک ہوگی انڈیا اینڈ ورلڈ جیوگرافی۔ انڈیا اور اسی طرح سے ورلڈ کی جیوگرافی کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنا چاہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہمیں معلومات حاصل کر لینی چاہیے۔ اسی طرح سے بکس اینڈ آتھرس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ ہسٹری یعنی انڈین ہسٹری اور اسی طرح سے ورلڈ کی ہسٹری کے بارے میں بھی معلومات ہونا چاہیے۔ لارجسٹ نیشنل پارکس اینڈ سینچریز، جو بھی برڈس کے سینچریز رہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ آرٹ اینڈ کلچر کے بارے میں، اکنامکس کے بارے میں، انڈین ہسٹری اور اسی طرح سے نیشنل پارکس ان انڈیا اس کے بارے میں امپورٹنٹ ڈیٹس، جیسے 26 جنوری ہمیں ریپبلک ڈے بول کے مناتی ہیں، 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے مناتی ہیں۔ اسی طرح سے جتنی بھی جنوری کے اعتبار سے ہو، فبرائی کے اعتبار سے ہو، ورلڈ کے بھی معلوم کر لینا، یعنی ورلڈ ڈے بھی معلوم کر لینا، اسٹیٹ ڈے بھی معلوم کر لینا، یہ دو ہی معلوم کرنا بہت ضروری۔ اسپورٹس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا ضروری ہے۔ سٹیز آن ریور بینک کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ کون سی سٹی میں کون سی ریور بہتی بول کے۔ انشاءاللہ ہم ان سب کے بارے میں آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ اسی طرح سے انڈین اکانومی، انڈیا کی اکانومی کیا ہے بول کے لیٹسٹ سمٹ اینڈ کانفرنس کے بارے میں، جیسے G8 سمٹ ہوا، یہ پورے کانفرنس جو بھی کانفرنس ہوتی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیے کنٹریز اینڈ دیئر کیپٹل، فیمس پلیسز ان انڈیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو بھی رہتی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا، جیسے UNO ہے، اسی طرح سے دوسرے آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ ایوارڈز جو بھی لیٹسٹ سے ایوارڈز ملے رہتے ہیں ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر لینا۔ یہ سوال ایوارڈز کے بارے میں اور اسی طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور انڈیا اینڈ ورلڈ جیوگرافی کے بارے میں جو سوالات تھیں جو پچھلے DSC کے ایگزام میں پوچھے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کو میں آنے والی ویڈیو میں ان سوالات کو حل کرتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گے کہاں کہاں سے سوالات آتے ہیں بول کر۔ ڈانس فارمز آف انڈیا، انڈین انڈیپینڈنس موومنٹ، شیڈول آف انڈین کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے بول کے، کنٹری کرنسی اینڈ کیپٹلز کے بارے میں۔ یہاں پر دیکھو کنٹری اینڈ دیئر کیپٹلز کے بارے میں جس جانکاری کے بارے میں بول لیے تھے، اور یہاں بھی دیکھو کنٹری کرنسی اینڈ کیپٹلز، جیسے ہمیں انڈیا میں ہے
तो हमें INR रुपीस इस्तेमाल करती। इसी तरह से सऊदी वाले रियाल इस्तेमाल करती। कुवैत वगैरह में क्या है, दीनार दीनार का इस्तेमाल होता। इस तरह से हर एक के बारे में हमें मालूमात हासिल करनी बहुत ज़रूरी रहती। इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिक्स के बारे में, इंडियन के कल्चर के बारे में एंड पॉलिटिक्स के बारे में। और इसी तरह से हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता वो है आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री एंड स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। चलो हम दूसरा देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया की जियोग्राफी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखो, इंडियन जियोग्राफी, हिंदुस्तानी जोग्राफिया। अब इसके बारे में मालूमात करेंगे कि किस तरह से यहाँ की जोग्राफियाई हालात है, किस तरह का माहौल यहाँ पर रहता, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, फिजिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, सॉइल टाइप्स इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में मालूमात हासिल करना। लेकिन इंडिया जियोग्राफी में हमारा सिर्फ हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें द हिमालयन माउंटेन्स, पहला क्या है, द हिमालयन माउंटेन्स यानी हिमालय पहाड़ के चोटियों के बारे में जिक्र है। फिर है द नॉर्थर्न प्लेन्स, नॉर्थ मानिए है शुमाल के जो भी खित्ते हैं, खित्तों के बारे में है। बाद में द पेनिनसुलर प्लेट्यू बोले तो सतह मुर्तफा के बारे में मालूमात हासिल करना, यानी रेगिस्तान, इंडिया के जो भी रेगिस्तान है, यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग पेपर मत जाओ, यहाँ पर सीधा लिखने पा रहा हूँ। इंडिया के रेगिस्तानों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। द कोस्टल प्लाइंस, कोस्टल के मानी है बंदरगाहें, इंडिया की जो भी बंदरगाहें हैं, जैसे कृष्णापट्टनम पोर्ट है, बंदरगाह है, मुंबई पोर्ट है, इन सब के बारे में मालूमात हासिल करना। फिर है द आइलैंड्स। अब हम सिर्फ द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो देखो, द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पहाड़ जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। यहाँ पर देखो, द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये क्या है, तकरीबन 500 मिलियन साल पहले बने हैं। ये किस तरह से बने हैं बोले तो, दो जो प्लेट्स रहती वो दो प्लेट्स के टकराव से बने ही बोलकर यहाँ पर थ्योरी पेश किए गए हैं। दो जो प्लेट्स रहती उसको आप यहाँ पर फोटोज में देख सकते हैं, दो प्लेट्स के टकराव से ये हिमालय के माउंटेन्स बने हैं बोलकर। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल एशिया का सब कॉन्टिनेंट है। इसी तरह से ये तकरीबन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है बोले तो 5 कंट्रीज में इसकी फैलाव है, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत और पाकिस्तान। ये पूरा कितने कंट्रीज में, पूरे 5 कंट्रीज में फैला हुआ है। इसकी जो फैलाव है वो कितने किलोमीटर तक है बोले तो तकरीबन 2400 किलोमीटर तक इसकी फैलाव है। माइल्स के एतबार से देखें तो तकरीबन 1500 माइल, एक माइल 1.7 किलोमीटर का कुछ रहता, 1.7 किलोमीटर का रहता। इसी तरह से इसकी विड्थ यानी इसकी चौड़ाई कैसा है तो ऐसा रहती है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर
यहाँ पर 400 किलोमीटर का विड्थ से कश्मीर में शुरू होता है, और जैसे जैसे ये पहाड़ बढ़ता है इसका फैलाव रहता है, यानी अरुणाचल प्रदेश तक का इसका फैलाव है। कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पर कश्मीर है और यहाँ पर देखो आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो इसके दरमियान ये फैलाव है तकरीबन। यहाँ पर इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर रहती, जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश तक आता है तो इसकी चौड़ाई में कमी पेश आती है 150 किलोमीटर तक। और इसी तरह से क्या है, ये हिमालय को चार पैरेलल, चार हिस्सों में तकसीम किया है, जैसे आउटर हिमालयास, शिवालिक हिल्स, इसी तरह से लेज़र हिमालयास, हिमाचल हिमालयास बल्कि ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री रेंज, ट्रांस हिमालयास, इस तरह से चार हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। इसकी जो आउटर हिमालयास में सबसे छोटी चोटी की लंबाई मीटर्स में कितनी है बोले तो 900 से 1200 मीटर के दरमियान है, सबसे छोटी छोटी। और ये किससे बनी हुई है बोले तो रॉक्स यानी पत्थर और तिलछट की मट्टी। आप यहाँ पर फोटो में देखो ये तिलछट की मट्टी कैसी रहती बोल के, यहाँ पर मैं फोटो डाला हुआ हूँ, ऐसी रहती है तिलछट की मट्टी। और लूज रॉक्स यानी ऐसे ऐसे पत्थर जो गिर जाते हैं पहाड़ से, ढलान में गिरते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो ऐसे पत्थर को लूज रॉक्स कहते हैं। और सेगमेंट बोलते हैं कीचड़, तिलछट बोलते हैं, यानी एक मिट्टी के ऊपर फिर दूसरी मिट्टी की परत बैठना, इसको तिलछट बोलते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर यानी आउटर हिमालयास के पहाड़ों के अंदर, चोटियों के अंदर से देहरादून जो वैलीज रहती, देहरादून, कोटलीडन, पटलीडन, ये वैलीज इसके अंदर मौजूद हैं आउटर हिमालयास के अंदर। इसी तरह से लेज़र हिमालयास के अंदर देखें तो इसकी जो लंबाई है, चोटी की लंबाई उस 3500 किलोमीटर से लेकर 4500 मीटर के दरमियान रहती। और इसी तरह से ये किससे बनी है बोलो, मेटामॉर्फिक अनसेडिमेंटरी रॉक्स। अब यहाँ पर देखो फोटो देखो, मेटामॉर्फिक अनसेडिमेंटरी रॉक्स के दरमियान बनी है। और इसकी पॉपुलर हिल स्टेशन कौन सी बोले तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, दार्जिलिंग, इसकी पॉपुलर हिल्स यानी लेज़र हिमालयास हिमाचल प्रदेश के अंदर मौजूद है। उसके हिल स्टेशन यानी पहाड़ी इलाका को सा बोले तो शिमला, शिमला का कापिल बोलते हैं हम लोग, शिमला, मसूरी, मसूरी जाखाना बोल के बहुत ज़्यादा सुने थे। नैनीताल के बारे में हम ना किताब में मौजूद है। इसी तरह से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जाएंगे वो अपने दोस्तों के साथ कितनी की बार बोलिए रहते। तो फिर इसी तरह से ग्रेटर हिमालयास जो हमारा हाईएस्ट मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, एक ऐसा पहाड़ी मुसलसल पहाड़ी सिलसिला, सबसे बड़ा मुसलसल पहाड़ी सिलसिला को सा बोले तो ग्रेटर हिमालयास हेमाद्री, इसकी रेंज क्या है हेमाद्री बोल के बोलती है। इसकी जो लंबाई है तकरीबन 600 मीटर, मिनिमम एवरेज बोलती है, मिनिमम इसकी लंबाई कितनी तक है तो 600 मीटर। इसमें सबसे बड़ी चोटी को सी बोले तो माउंट एवरेस्ट, बचपन से हमें पढ़ते आ रही माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8840.9 किलोमीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर। और इसी तरह से दूसरी कंचनजंगा, फिर है नंगा पर्वत, 8126 मीटर इसकी लंबाई है। और यहाँ से ग्लेशियर्स बोले तो बर्फ़ से ढका हुआ इलाका, और उसे वो बर्फ़ क्या करता बोले तो पिघल कर एक पानी का एक झील के जैसा या फिर एक पानी का इलाका बनता। अब यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। तो इसके ग्लेशियर्स कौन से बोले तो गंगोत्री, यमुनोत्री, सैचन, बालतोरो, इसके ग्लेशियर्स हैं।
यहाँ पर ग्लेशियर्स नहीं, खाली ये हिल स्टेशन है और ये वैलीज है, वैलीज के लिए मशहूर है। आउटर हिमालयास, लेज़र हिमालयास हिल स्टेशन के लिए मशहूर है। ग्रेटर हिमालयास ग्लेशियर के लिए मशहूर है। और बाद में हमारा है ट्रांस हिमालयास। ये कहाँ पर है तो नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयास, यानी जो ये ग्रेट हिमालयास है उसके शुमाल में मौजूद है। और ये क्या है, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, यानी लद्दाख, श्रीनगर, कैलाश गिरी, हमें कैलाश क्या बोलते हैं, जंस्कर, कैलाश गिरी रेंज, ये सब इसी में आती हैं। और इसकी सबसे लंबी हाईएस्ट जो पीक है, यानी जो हाईएस्ट इसकी चोटी है, वो K2 पहाड़ है। इसको याद रख लो, K2 कितने हैं ये बोले, इसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पर है बोले तो कराकोरम रेंज में इस मौजूद है। तो हमारा नेक्स्ट, अब हम लोग हिमालय की मशहूर चोटियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है और ये कितने मुल्कों में फैले हुए हैं उधर। तो सबसे लंबी और बड़ी जो चोटी है हमारी माउंट एवरेस्ट है। दूसरा K2 पहाड़ है, K2 चोटी, K2 पहाड़। उसके बाद कांचनजंगा, बाद में है लुटसे, बाद में नानगा पर्वत। इसी तरह से ये नेपाल नहीं है, ये अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो माउंट एवरेस्ट की है उसकी लंबाई है 8849 किलोमीटर। और इसी तरह से K2 पहाड़ की लंबाई है 8611 मीटर। इसी तरह से कांचनजंगा की 8586 मीटर। लुत्से की है 8516। नानगा पर्वत की है 8125। और अन्नपूर्णा जो चोटी है उसकी लंबाई है 8091 मीटर इसकी लंबाई है। तो देखो माउंट एवरेस्ट की फैलाव कहाँ से कहाँ तक है बोले तो, जिस पहाड़ इसके फैलाव कहाँ से कहाँ तक है बोले तो नेपाल, चीन और तिब्बत के दरमियान है। K2 पहाड़ पाकिस्तान में मौजूद है। कंचनजंगा की फैलाव भारत और नेपाल के दरमियान है। से नेपाल और तिब्बत के दरमियान है। नानगा पर्वत पाकिस्तान में फैला हुआ है। अन्नपूर्णा नेपाल में मौजूद है। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा जो बड़ी चोटियां हैं उसका फैलाव अक्सर अक्सर क्या है, नेपाल में है। नेपाल में किस लिए बोले तो क्योंकि हिमालय के अक्सर फैलाव नेपाल में थाने की वजह से यहाँ पर ज्यादा है। हिमालय की अहमियत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, वहाँ की मौसमी असरात, क्लाइमेट कैसी रहती है, ये यहाँ पर क्या है, अक्सर सर्द हवाएं। ये किस तरह से हमारी हिंदुस्तान को कारामद और मददगार साबित होता बोले तो बर्रे सगीर से जो भी सर्द हवाएं, ठंडी हवाएं जो भी आती उसको हिमालय पहाड़ रोकता। और इसी तरह से मानसूनी बारिशों में भी ये मददगार साबित होता है। इस तरह से दरिया और पानी का जरिया भी हिमालय पहाड़ है। हिमालय पहाड़ से, यानी पहाड़ की चोटियों से, पहाड़ से बहुत सारे नदियां निकलती, जैसे सिंध नदी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। ये सब क्या है, पहाड़ यानी हिमालय पहाड़ से निकलते हैं। और इसी तरह से हिमालय पहाड़ में कई लाखों के ग्लेशियर्स मौजूद हैं जो पीने का पानी, लोगों को पीने का पानी, मीठे पानी का भी एक अहम जरिया है, पीने का पानी फराहम कर। जो पहाड़ है, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, जो पहाड़, जो नदी है, जो दरिया है, वो हिमालय से निकलकर कहाँ तक चलती बोले तो तकरीबन बांग्लादेश तक इसका बहाव है। और इसी तरह से कहा है, इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी, हयाती तनाव के साय तो नबातात और जंगली हयात से मालामाल है। और इसी तरह से मशहूर नेशनल पार्क और सेंचुरीज भी मौजूद हैं, जैसे जिम कॉर्बेट, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। ये सब कहाँ पर हैं बोले तो हिमालय पहाड़ में
और इसी तरह से इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी हासिल करें तो ये सियाहत यानी जो भी लोग फिरने घूमने के लिए जाते हैं, और इसी तरह से जो कोह पैमाई यानी पहाड़ को चढ़ने के वास्ते जो भी लोग रहते हैं उनके लिए बहुत मशहूर रहता। इसी तरह से ज़राई पैदावार के लिए मैदानी इलाकों में ज़रख़ीज़ी मिट्टी फराहम करता है। दफ़ाई अहमियत के एतबार से यानी मिलिट्री के एतबार से देखें तो हमारे डिफेंस सिस्टम के एतबार से देखें तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कुदरती सरहद का किरदार अदा करता है। पहाड़ लंबा रहने की वजह से चीन और पाकिस्तान की जो भी आर्मी रहती है, डिफेंस सिस्टम रहता है, वो लोग हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते। और इसके जो मसाइल हैं, मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स के तो बाद मेरिट्स देखे हैं, डीमेरिट्स क्या है बोले तो सबसे पहले मसाइल जलजले यहाँ पर ज्यादा होती हैं, लैंड स्लाइडिंग यानी जमीन का फिसलाव, लैंड स्लाइडिंग भी देखने को मिलता, ग्लेशियर्स का पिघलना, ग्लेशियर्स ठंड के ठंड के जमाने में सर्दी के माहौल में ग्लेशियर्स नहीं पिघलते, अगर से धूप ज्यादा हो गई तो ग्लेशियर्स पिघलकर पानी निकलता, तो वो, वो भी एक मसला बनता। और इसी तरह से सरहदी तनाज़ात, जैसे सरहद के एतबार से देखें तो ये हमारी मुल्क की जो भी जंगें होती हैं, चीन और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी जंगें चलती हैं, इस सरहद यानी इलाके के एतबार से चलती हैं, जो हम अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक भी पाकिस्तान वाले जम्मू कश्मीर हमारा है बोलकर लड़ते रहते हैं, और चीन वाला भी आकर तिब्बत और उसके ऊपर के इलाके जो भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये हमारा इलाका बोलकर लड़ते रहते हैं। ऐसे सरहदी तनाज़ुआत भी ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इम्पोर्टेंट पासेस इन द हिमालयाज। पासेस बोले तो वो सड़क वो सड़क जो सिर्फ एक तरफा रहती, और ये कहाँ पर बनाई रहती बोले तो पहाड़ों के दरमियान, चोटियों के दरमियान बनाई रहती। तो ऐसे सड़कों को पासेस बोलती। मामूली सड़क क्या है, उसे हाईवेज बोलती। ये जो रोड्स, उसे रोड्स बोलती। ये रोड्स क्या है, दोनों तरफ आने जाने इसका फैलाव रहता, लेकिन ये जो पासेस हैं, जो भी पहाड़ी इलाकों में बनाई जाती, वो सिर्फ एक तरफा रहती, अपोजिट से आने के वास्ते नहीं रहता। तो इसके बारे में देखो, नथुला, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में, यहाँ पर देखो नथुला का जो पासस है वो कहाँ पर है बोलकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगीला, करोकरम, चंगला, फुरदुंगला, तगलंगला, भरालचा, इमिसला, शिपकीला, बनीहिला, पीरपांजल, बुर्जीला, इस तरह से सब ये सभी पासस हैं। ये कहाँ पर है बोले तो अक्सर चोटियों में बनाई जाती हैं। और इसे नथुला जो है वो सिक्किम पर यहाँ पर है नीचे। ये भूटान नेपाल के दरमियान बना हुआ है। और ये क्या काम करता है बोले तो, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, तिजारत के एतबार से इंडिया और चीन के दरमियान जो भी तिजारती मामलात हैं और चीज़ों को लाने देने के लिए ये काम करता है नथुला। तो नथुला का जो रोडवे है, जो पासस है, वो काम करता है। शिप किला ये हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, शिप किला यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर देखो, शिप किला यहाँ पर है। और ये भी इंडिया और चाइना के दरमियान, यहाँ पर चाइना है ना, ये सब चाइना चाइना का इलाका है, तो ये चाइना के दरमियान हमें आने जाने के वास्ते, लेकिन अब तो बॉर्डर्स बंद हैं। और तिब्बत का भी जो इलाका है देखो, यहाँ पर तिब्बत तिब्बत है ना इधर, ये जो भी इधर तिब्बत का इलाका है, तो उसके दरमियान ये कनेक्शन बना था, और इसी तरह से ट्रेड के एतबार से बना था। और इसी तरह से जजीला ये लद्दाख में है,
देखो यहाँ पर زجیلا جو ہے کلر چینج کر دوں میں، جو زجیلا ہے وہ لداخ میں ہے. یہ کیا کرتا، یہ زجیلا جو علاقہ یہاں پر پہاڑ میں جو ہے، یہ آ کر سری نگر اور لیہ کو کنیکٹ کرتا، دونوں کے درمیان یہ کنیکشن بناتا، یہاں سے وہاں پر جانے کے لیے راستہ نکالتا بولو. اور اسی طرح سے برا لالچا، یہ برا لالچا دیکھو یہاں پر ہے میپ میں، اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھو، یہاں پر ہے. یہ کیا ہے؟ ہماچل پردیش سے لے کر یہاں پر یہ ہمارا ہماچل پردیش ہے، یہ کشمیر ہے، یہ جموں ہے. دیکھو ہماچل پردیش سے لے کر سری نگر اور لیہ کو یہ کنیکٹ کرتا. حالانکہ یہاں پر جانے کا راستہ نہیں تھا، اماؤنٹ میں راستہ بنانے کی وجہ سے یہاں پر یہ کنیکٹ کرتا. تو منالی سے لے کر لیہ ہائی وے تک سر کردونگلا، یہ بھی لداخ میں ہے. یہ بھی موٹر سائیکل لے کر جانے کے لیے بہت ہی زبردست روڈ ہے. آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھے رہتے ہیں، اکثر لوگ لداخ کا سفر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر، یہاں پر فوٹوز بھی ڈالا ہوا ہوں، دیکھو موٹر وے کے لیے بہت اچھی رہتی. تو دیکھو اب اس ویڈیو میں ہم لوگ، اب ہمیں کیا ہے، ہمالیہ سے نکلنے والی دریاؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے دریائے سندھ ہے، جسے انگریزی میں انڈس ویلی، انڈس بولتی. تو یہ تبت مانسروور اور مانسروور سے نکلتی ہے، اور یہ بھارت اور پاکستان دونوں میں نکلتی ہے. یہاں پر دیکھو میں مارک، میپ میں بھی کہاں سے نکلتی ہے مارک لگایا ہے. یہاں سے دیکھو ادھر پاکستان والا علاقہ ہے، اور ادھر انڈیا جموں کشمیر سے ادھر طرف یہ بہتی ہے ندی. اور اسی طرح سے گنگا ہے، یہ گنگا ندی یہاں پر دیکھو، یہاں پر ادھر گنگا ندی یہ اتر پردیش میں بہتی. جہاں پر آج کمبھ میلہ چلتا ہے، یہاں سے نکلتی، جو یہاں سے نکلتی ہے، یہ گنگوتری گلیشیئر سے نکلتی. گنگا ندی کہاں سے نکلتی بول کے سوال آیا تو بھی گنگوتری گلیشیئر سے نکلتا. اور یہ بھارت اور بنگلہ دیش یہاں سے ہوتی ہوئی دیکھو گنگا ندی، یہ سب تو بہاؤ دیکھ لو، یہاں سے ہوں بنگلہ دیش تک چلتی. اور اسی طرح سے ہماری یمنا ندی ہے، یمنا یہاں سے نکلتی ہے، اور یہ یمنوتری گلیشیئر سے نکلتی. اور بھارت میں اس کا بہاؤ کہاں تک ہے، یمنا کا بھارت تک ہے. جب ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جب انڈیا کے ریورس کے بارے میں، اور اسی طرح سے یہ جو ہمالیہ سے نکلنے والی ریورس ہیں، اس سے پھر نکلنے والی جو معاون ندیاں ہیں، جب ان کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے تب اس کے بارے میں بریفلی دیکھیں گے. اب فی الحال آپ لوگ ہمالیہ سے نکلنے والی دریا کے بارے میں معلومات حاصل کر لیجیے. بعد میں ہے برہم پترا، یہ جو برہم پترا ہے تو یہاں پر ہے برہم پترا ریور. اور یہ کہاں سے نکلتی بولے تو تبت کا علاقہ، چائنا کا تبت کا علاقہ ہے. یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں سے نکلتی ہے. یہاں پر دیکھو چمائے گوڈنگ گلیشیئرس یہاں سے نکلتی ہے. اور یہ کہاں سے نکلتا ہے، چین، بھارت اور بنگلہ دیش، چائنا کا علاقہ ہے، چائنا میں بہتی. اسی طرح سے ہمارے انڈیا میں بھی بہتی، دیکھو یہاں پر انڈیا میں. اور اسی طرح سے بنگلہ دیش، دیکھو یہ بنگلہ دیش کا علاقہ، یہ بنگلہ دیش تک اس کا بہاؤ ہے. یہ رہی ہمالیہ سے نکلنے، اور بھی بہت ساری ندیاں ہیں جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں گومتی، چناب، یہ سب ندیاں ہیں. یہ سب اس کی جو بڑی ندیاں ہیں ان کی معاون ندیاں ہیں، جسے ہم معاون ندیاں کہتے ہیں. یہ سب ان کی معاون ندیاں ہیں. ہمالیہ کے اعتبار سے سب سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والا کو پیما کون بولے تو سرائڈمنڈ ہلری اور تنزرنگ نورنگے، یہ دونوں لوگ کیا ہے 1953 میں سب سے پہلے ہمالیہ پہاڑ کو، چوٹی کو چڑھ کر ماؤنٹ ایوریسٹ کو چڑھ کر
अपना सफ़र मुकम्मल किया। इसी तरह से हिमालय पहाड़ क्या है, हर साल तकरीबन 5 मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर ऊंचा होता है, यानी बढ़ता रहता। किसके मुताबिक? किसकी वजह से बोले तो टेक्टोनिक सरगर्मियों की वजह से। और ये जो हिमालय के खित्ते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में शामिल हैं, जो कुतुब शुमाल और कुतुब जनूब के बाद सबसे ज्यादा बर्फ के जखीरे हैं। कुतुब शुमाली ग्लोब में आप देखें तो मालूम आता है, एक तरफ कुतुब शुमाली रहता और एक तरफ कुतुब जुनूबी रहता। तो ये इलाके, यहाँ पर सिंपल दिन, ये इलाके बर्फ से ज्यादा ढके हुए होते। उसके बाद सबसे ज्यादा बर्फीला इलाका को था बोले तो हिमालय के खित्ते। सैचन ग्लेशियर्स क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यहाँ पर जो इलाका है और जंगी इलाका भी है भारत की, यहाँ पर भारत के फौजी मौजूद रहते हैं। और इसी तरह से ये दुनिया के सबसे बड़े पैमाने में मीठे पानी के ज़खायर में से एक है। मीठा पानी फराहम करने में हिमालय का जो पहाड़ है, उसकी नदियाँ जो हैं, वो बहुत अहम है। इसमें तकरीबन 5,000, कितने, 5,000 झील मौजूद हैं, जैसे रूपकंद, गोरखा झील, पिनगोनिक झील, वशिष्ठम, मानसरोवर झील वगैरह शामिल हैं। तकरीबन कितने, 5। ये रहा आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह आने वाली कल की वीडियो में हम लोग, अभी हम सिर्फ माउंट एवरेस्ट के बारे में मालूमात हासिल करें ना, आने वाली वीडियो में हम लोग उसके और भी ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे। जैसे सिर्फ हमें क्या है, सिर्फ हमें क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में मालूमात हासिल करें इंशाल्लाह कल की वीडियो में। रिवर्स ऑफ इंडिया, क्लेमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये कल की वीडियो रही, इसलिए आप लोग क्या करना, हमारे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन कर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और जो भी वीडियोस के कंटेंट होगा इंशाल्लाह उसके पोल्स हमारे डेली चैनल से अपडेट होंगे। उसे आप वीडियो देखकर सवालात को हल करने में भी आसान होगी। और इंशाल्लाह आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका बहुत सारा फायदा होगा। हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा मोटिवेशन हो।